Hello बच्चों, in this question we are given that the equilibrium constant of the following are N2 plus 3H2 given to NH3. इसका equilibrium constant है K1. For the reaction N2 plus O2 given to NO, इसका equilibrium constant है K2. For H2 plus half O2, इसका giving H2O, इसका जो equilibrium constant है वो क्या है K3. The equilibrium constant K of the reaction, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा हमें बोलना है। सो हमें दिया गया है 2NH3 plus 5/2HO2 गिविंग 2NO plus 3H2O। तो ये रहे ऑप्शंस। सो वी हैव टू से व्हिच वन इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा, जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ओके राइट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें रिएक्शन पहला वाला दिया गया है क्या है, वी हैव N2 plus H2, we have N2 plus 3H2 given to NH3. Okay, 2NH3। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, तो K1 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू concentration of product divided by the concentration of the reactants। प्रोडक्ट क्या है NH3 raised to the power 2, right, कोएफिशिएंट है 2, so it will be going to the power। फिर नीचे में आएगा N2 and H2 raised to the power 3, so we are putting this as equation 1। फिर हमें दिया गया है सेकेंड इक्वेशन जिसमें है N2 plus O2, it is giving 2NO। इस वाले इक्वेशन के लिए दिया गया है K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K2 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू NO, concentration of NO raised to the power 2 divided by concentration of N2 and concentration of O2। तो इसका इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है। ओके, अभी जो इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, 2NH3 plus 5/2O2 is giving 2NO plus 3H2। तो इस वाले इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होगा, इट विल बी NO raised to the power 2 into H2O raised to the power 3 divided by NH3 raised to the power 2 and O2 raised to the power 5/2। अभी इस इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ऊपर में क्या चाहिए, NO चाहिए और H2O चाहिए, राइट। सो NO और H2O चाहिए। हेलो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग आर। तो यहाँ पे है N2 plus 3H2 given to NH3, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है K1। Then we have N2 plus O2 given to NO, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, and H2 plus half 2 given H2O, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। The equilibrium constant K of the reaction, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। That is, we are given 2NH3 plus 5/2O2 giving 2NO plus 3H2 and ये रहे हमारे ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ओके, अभी हम जो पहला वाला रिएक्शन है क्या है, N2 plus 3H2 giving to NH3, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, so K1 here will be equal to NH3 concentration of product raised to the power 2, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है 2, divided by concentration of reactant क्या है N2 and H2, right, and यहाँ पे H2 raised to the power 3। तो दिस इज इक्वेशन 1। फिर हमें दिया गया है
second equation, that is N2 plus O2, it is giving 2NO. Okay, so यहाँ पे equilibrium constant है K2. So K2 will be equal to NO raised to the power 2 divided by N2 into concentration of O2. This is equation 2. फिर हमें दिया गया है थर्ड इक्वेशन, जिसमें है H2 plus O2 giving H2O. This is K3. तो K3 के लिए क्या होगा, concentration of H2O divided by, this is half O2, okay, concentration of H2 multiplied by concentration of O2 raised to the power half. So this is equation 3. अभी हमें चाहिए this equation के लिए equilibrium constant, that is the equation that we are given is 2NH3 plus 5 by 2 O2 giving 2NO plus 3H2. तो इसके लिए K का वैल्यू क्या होगा, NO raised to the power 2 into H2O raised to the power 3 divided by NH3 raised to the power 2 and O2 raised to the power 5 by 2. अभी हमें क्या चाहिए, NH3 नीचे में चाहिए, तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है, इससे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 1 by K1 करेंगे. तो हम 1, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले ले 1 by K1 करें, तो हमें क्या मिलेगा, so we'll get N2 plus H2 raised to the power 3, right, divided by NH3 raised to the power 2. Okay, right. और अगर हम ये जो K3 है, राइट, इसका होल क्यूब कर दे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H2O का होल क्यूब, राइट, तो 3 का होल क्यूब करे, 3 क्यूबिंग 3 क्यूब करे, तो K3 cube will be equal to H2O raised to the power 3 divided by H2 raised to the power 3 and O2 will be raised to the power 3 by 2. Okay. तो अगर हम अभी क्या करें, K2 K को हम ऐसे लिखे, K2 into K3 क्यूब डिवाइडेड बाय K1, तो क्या बनेगा, तो जो K आएगा यहाँ से, इट विल बी इक्वल टू K2 में हमें क्या मिला था, K2 में वी गॉट NO2 NO का होल स्क्वायर, राइट, NO का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 2, देन वी हैव N2 and O2 into K3 का क्यूब H2O रेज टू द पावर 3 divided by H2 raised to the power 3 into O2 raised to the power 3 by 2 into 1 by K1 है, राइट, सो हम K1 को क्या लिख सकते हैं, NH3 raised to the power 2, A ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, N2 into H2 raised to the power 3. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे NO2 और H2O3 यहाँ पे रहेगा, बाकी N2 and N2 ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ N2 कैंसिल होगा, बाकी सब ऐड कर देंगे हम अभी, सो विल हैव NO
raised to the power 2 into H2O raised to the power 3 divided by H2 divided by H2 raised to the power 3. ये जो H2 raised to the power 3 है, it will also get cancelled. So we'll get NH3 raised to the power 2 and O2 raised to the power 5 by 2. This is what we'll get. So यही था K का, जो K हमने निकाला था, यही था, right? So हमें क्या करना है? K फाइंड आउट करने के लिए K2 into K3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय K1. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा. So our correct option will be K2 into K3 whole cube divided by K1, that is option C. I hope you understood. Thank you.